Hi everyone, today we'll be starting with chapter 3 Meeting Life's Challenges. So the first thing that we need to understand is what is stress. So stress एक बहुत common word है, we all use it, but in psychology it has a specific meaning. So stress is defined as a pattern of responses that an organism makes when faced with a situation or a stimulus that disturbs its natural balance and exceeds the person's ability to cope. So हम इसे break down करते हैं, बहुत लंबी definition हो गई है. For example, imagine that your body and your mind are in a state of balance. इसे हम कहते हैं equilibrium. Now something happens like a deadline या breakup या an exam, and that situation is called a stimulus या फिर a stressor. So now when that stressor is too much for you to handle easily, then your body and mind respond to it, and these responses चाहे physical हो या emotional हो या psychological हो, that is what we call stress. The stress is not always a bad thing. It comes in two main forms. One you have is your eustress. Eustress क्या है? That is your positive type of stress. It is motivating you. It is keeping you alert. It is helping you to perform better. So think of like the excitement and energy that you feel before a performance or a sports match. That's eustress. It actually helps you. But then you have distress, that is the negative type of stress. It is like जब stress is too intense या it lasts too long and it leads to the wear and tear on the body. There's emotional exhaustion, mental fatigue. So this kind of stress, it lowers your performance and motivation. So just remember, eustress is your good stress that energizes you, and distress is your bad stress that drains you. Now let's go deeper and talk about the psychological meaning of stress. तो स्ट्रेस इज़न जस्ट अबाउट कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि हम कैसे उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड हाउ वी आर रिएक्टिंग टू थिंग्स इनसाइड आवर माइंड्स एंड इनसाइड आवर बॉडीज. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद अ स्ट्रेसर. Now this can be internal or external. External stressors are things from the outside like noise, exams, conflicts with others, deadlines, and then you have your internal stressors that are coming from within like your fear, anxiety, overthinking, self-doubt. So जब we face a stressor, हमारी body and हमारा mind it all reacts to it. So this involves biological reactions like your heart beats faster, there's sweating, or you breathe quickly, or there are psychological reactions like you feel nervous or anxious or overwhelmed. So this reaction is sometimes what we call a fight or flight response, that our body either prepares to fight the challenge or run away from it. So something important is that every stressful situation presents us with a challenge, and we either rise to overcome the challenge or we get affected negatively, which leads to stress symptoms like illness, fatigue, emotional strain, and this is called strain, our body's and mind's reaction to being under pressure. So stress is not just the event, it's the whole process. It starts from the stressor, then how we react, and whether we cope with it or we break down. So now let's look at how our brain interprets and appraises these situations. That is called a stress appraisal, which decides whether we feel confident or panicked when we're facing a challenge. Stress is not just about the situation, it is also about your thoughts and your interpretations. One person might find a crowd exciting, whereas other feels panic. So it's all about the way you appraise it. सो लेट्स टॉक अबाउट अप्रेजल लिटिल मोर डिटेल में. तो अप्रेजल क्या है कि देखो, व्हेन वी फेस अ न्यू सिचुएशन हमारा माइंड एक क्विक एवेल्यूएशन करता है, इसे हम कहते हैं अप्रेजल. बेसिकली हाउ वी आर जजिंग अ सिचुएशन. दो टाइप के अप्रेजल होते हैं, वी आर प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल. प्राइमरी अप्रेजल क्या है? योर फर्स्ट रिएक्शन टू द सिचुएशन, मतलब यू क्विकली आस्क योर सेल्फ, is the situation positive, negative or neutral? Is it a threat, a challenge or maybe nothing to worry about? For example, imagine you are about to give a speech, ठीक है. अब वन पर्सन विल थिंक कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो दैट इज अ पॉजिटिव अप्रेजल, एंड द अदर पर्सन माइट पैनिक, दे आर लाइक ओ नो व्हाट इफ आई मेस अप, सो दैट इज अ नेगेटिव अप्रेजल. एंड दूसरी चीज़ आती है हमारी सेकेंडरी अप्रेजल. तो सेकेंडरी अप्रेजल क्या है कि वंस यू डिसाइड कि अ सिचुएशन इज अ चैलेंज और अ थ्रेट, सो योर ब्रेन मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कि क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, डू आई हैव द स्किल्स, डू आई हैव द सपोर्ट. सो दिस इज वेयर योर कोपिंग एबिलिटी कम्स इन टू द पिक्चर. So if you feel confident, then your stress will stay low, but if you feel helpless, then your stress will shoot up. So अब हमें समझ आ गया कि स्ट्रेस क्या होता है. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर एक्सपोज टू स्ट्रेस. हमारे बॉडी एंड माइंड कैसे रिएक्ट करते हैं. सो रिजल्ट क्या है स्ट्रेसर्स का? तो जब हम स्ट्रेस फेस करते हैं हमारा बॉडी पूरी एक्टिवेट हो जाती है, हम रिएक्शन देते हैं, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, माइंड, बिहेवियर सब इफेक्ट होते हैं. एंड द रिएक्शन इजंट सेम फॉर एवरीवन, इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली 4 की थिंग्स. पहला इज इंटेंसिटी, कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसर है. दूसरा इज ड्यूरेशन, कितनी लॉन्ग वो स्ट्रेसर लास्ट कर रहा है. थर्ड इज योर कॉम्प्लेक्सिटी, कि इज इट सिंपल टू डील विद, इज इट कॉम्प्लिकेटेड. एंड फोर्थ इज योर प्रिडिक्टेबिलिटी, कि डिड यू सी इट कमिंग और वॉज इट अनएक्सपेक्टेड.
सो थिंक अबाउट इट ना, अगर आपको एक सरप्राइज एग्जाम हो टुमारो, तो दैट इज एन अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेसर ना, दैट विल कॉज यू मोर स्ट्रेस देन अ स्ट्रेसर फॉर एग्जाम्पल जिसके बारे में तो एक महीने से पता ही है ऑलरेडी. सो नाउ लेट्स लुक एट सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. सबसे पहले ये है फिजिकल सिम्टम्स लाइक हेड एक, बॉडी एक, स्टमक इशू, फिटीग. ये इसलिए होता है बिकॉज योर बॉडी इज ऑन कॉन्स्टेंट अलर्ट ना, तो यू गेट टायर्ड. Then is your emotional symptoms like mood swings, irritability, anxiety, you feel overwhelmed, you feel helpless. So for example, you may have noticed that students cry easily or snap at friends, and these are your emotional response to stress. And then comes your behavioral symptoms कि maybe there are changes in eating, maybe you're overeating or not eating at all. नींद या तो बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है. You're withdrawing from people, getting into arguments more often. So stress show up होता है हमारे body, feelings, actions हर जगह. अब सोर्सेज क्या है स्ट्रेस के, कहाँ से आ रहा है स्ट्रेस, तो 3 मेजर सोर्सेज हो सकते हैं. या तो पास्ट एक्सपीरियंस जिन्हें हम डायनामिक भी कहते हैं कि इफ़ यू हैव फेस्ड हार्ड टाइम्स बिफोर देन दैट कैन मेक फ्यूचर सिचुएशंस ईदर ईजियर और हार्डर डिपेंडिंग ऑन कि आपने पहले कैसे कोप करा था. देन इज योर कंट्रोलेबिलिटी. इफ़ यू फील इन कंट्रोल देन स्ट्रेस इज लोअर. इफ़ यू फील पावरलेस देन स्ट्रेस इंक्रीजेस. एंड देन इज योर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर कि अगर इंटरनल है लाइक सेल्फ डाउट, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, या एक्सटर्नल है लाइक नॉइज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और वर्कलोड. Now let's discuss our types of stress. सबसे पहले we have physical and environmental stress. Physical stress कब होता है? When you overexert yourself, you don't eat properly, you suffer an injury, you lack sleep. तो हमारी body strain हो रही है and you feel exhausted या फिर in pain. Then you have your environmental stress. Environmental stress आ रहा है आपके surrounding से, like noise, crowded places, disaster हो गए like fire, earthquakes वगैरह. So इस सब से you feel anxious and overwhelmed. देन आते हैं आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर वी हैव 4. फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? जब समबडी इज ब्लॉकिंग आवर गोल्स, तो वी फील स्टक या फील डिससेटिस्फाइड बिकॉज हम अचीव नहीं कर पा रहे दैट वी वांट. सेकंड इज योर कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब यू हैव टू चूज बिटवीन एक्शंस दैट गो अगेंस्ट योर वैल्यूज या बिलीव्स. देन इज योर इंटरनल प्रेशर. इंटरनल प्रेशर आता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन दैट यू प्लेस ऑन योर सेल्फ, दैट इफ यू पुश योर सेल्फ टू हार्ड टू मीट हाई स्टैंडर्ड्स. एंड लास्ट इज सोशल प्रेशर. सोशल प्रेशर जो आता है फ्रॉम डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स लाइक फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी. नेक्स्ट विल डिस्कस सोशल स्ट्रेस. तो सोशल स्ट्रेस क्या है कि इट इज अराइजिंग फ्रॉम आवर इंटरेक्शंस विद अदर पीपल या सोशल इवेंट्स. तो इसमें हमारी सिचुएशंस आ गई लाइक डेथ और इलनेस इन द फैमिली, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, इशूज हो रहे हैं फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स वगैरह के साथ, ट्रबल है विद नेबर्स. अब लेट्स डिस्कस सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. तो सबसे पहले यू हैव लाइफ इवेंट्स. तो लाइफ इवेंट्स क्या हो गए? आपके significant changes in your life that cause stress, and they can be planned also and unplanned also. For example, moving into a new house, this can be exciting but it is also stressful because you have to do a lot of adjustments, there's a lot of work involved. Or for example, breakup of a long term relationship. So even if it is expected, it can bring emotional distress, it does disrupt your life. Second, we have hassles. तो hassles आपके smaller daily irritations है but they build up over time ना. फॉर एग्जाम्पल नॉइजी सराउंडिंग्स, कॉन्स्टेंट नॉइज आ रही है ट्रैफिक से या नेबर से या कुछ भी, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी. या फिर कम्यूटिंग एंड ट्रैफिक स्नॉल्स, अगर यू स्पेंड लॉन्ग आवर्स स्टक इन ट्रैफिक या फिर यू डील विद डिलेज अलॉट, तो उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है. सो द मोर वी एक्सपीरियंस दीज स्मॉल डेली हैसल्स, द मोर स्ट्रेस दे कॉज एंड इट इफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ. कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. तो जब स्ट्रेस कंटिन्यू होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो एक मेंटल ओवरलोड भी होता है. मतलब द पर्सन इट्स फाइंडिंग इट हार्ड टू थिंक क्लियरली या फोकस प्रॉपरली. फॉर एग्जाम्पल पुअर डिसीजन मेकिंग एट होम या फिर इन करियर, वर्क प्लेस में, या फिर उसकी एबिलिटी नहीं है अब टू मेक साउंड या लॉजिकल चॉइसेस. अब फिर बिहेवियरल इफेक्ट्स भी हैं स्ट्रेस के. लाइक स्ट्रेस हमारा बिहेवियर, हमारी डेली हैबिट सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू ईट लेस, देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, कैफीन इनटेक बढ़ गया है ना, कुछ लोग दिन में 4-4 कप कॉफ़ी पीने लग जाते हैं. देयर इज एक्सेसिव यूज ऑफ सिगरेट्स या अल्कोहल या ड्रग्स, मे बी लोग ट्रैंकुलाइजर्स, बेसिकली जो कामिंग ड्रग्स होते हैं वो भी यूज़ करने लग जाए, जिससे फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन पुअर हो जाते हैं, डिजीनेस आ रहा है. सो नाउ लेट्स डिस्कस स्ट्रेस एंड हेल्थ. तो स्ट्रेस से हमारा माइंड को तो इम्पैक्ट कर नहीं रहा है, हमारी पूरी फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो बीइंग इम्पैक्टेड. तो उसके कुछ तो शॉर्ट टर्म सिम्टम्स आ सकते हैं लाइक स्टमक इज अपसेट, बॉडी एक हो रहा है, नॉजिया लग रहा है, डायरिया, फीवर. बट अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग होता है तो हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाती है. सो साइंस ऑफ लॉन्ग टर्म फिजिकल स्ट्रेस आर की क्रॉनिक फटीग रह रहा है, वीकनेस और लो एनर्जी लेवल्स. Now there's also mental exhaustion and burnout. तो mental exhaustion due to stress, it shows up as कि irritability, anxiety, you feel helpless, you feel hopeless. Then burnout. Burnout क्या होता है कि पूरा एक स्टेट है आपका फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, आप हर तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हो बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. एंड इट इज कॉमन इन पीपल जो कॉन्टिन्यूस प्रेशर फेस कर रहे हैं लाइक स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स या केयर गिवर्स. एंड इम्पैक्ट क्या रहता है हेल्थ पे कि क्रॉनिक स्ट्रेस से आपका पूरा इम्यून सिस्टम वीकन हो जाता है, जिससे आपका रिस्क बढ़ जाएगा फॉर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स लाइक एजमा, एलर्जीज, हेडेक्स.
एंड रिसर्च क्या दिखाता है कि 50 to 70% ऑफ फिजिकल इलनेस में स्ट्रेस कंट्रीब्यूट करता है. अराउंड 60% जो लोग मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स जाते हैं या फिर हेल्थ क्लिनिक्स नॉर्मली भी जाते हैं, दे आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स एंड नॉट एनी फिजिकल डिसऑर्डर. Next, we'll discuss the very important topic when you are studying this chapter, that is General Adaptation Syndrome or GAS, that was given by Hans Selve. So some people say it's Selve, some people say it's Selve. I'm gonna say Selve for the pronunciation, but you can correct me in the comments. So Selve studied stress in animals using various stressors जैसे high temperature, X-rays, insulin injections, and उन्होंने एक predictable pattern दिखा उन्हें body में कि कैसे स्ट्रेस हमारी बॉडी रिएक्ट करती है टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जिन्हें उन्होंने टर्म करा एज GAS, गैस. ठीक है, तब गैस के 3 स्टेजेस हैं. यू हैव योर अलार्म रिएक्शन स्टेज. सबसे पहला स्टेज डिस्कस करते हैं कि बॉडी ने स्ट्रेसर को डिटेक्ट करा है, तो आपका जो एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड योर हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन आर रिलीज्ड एंड योर बॉडी विल गो इनटू योर फाइट और फ्लाइट मोड, दैट इज इट इज रेडी टू फेस और एस्केप द थ्रेट. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस रेजिस्टेंस स्टेज. सो रेजिस्टेंस स्टेज कब आते हैं? जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो गया है बियॉन्ड द इनिशियल अलार्म फेज, देन यू हैव योर रेजिस्टेंस फेज. इसमें क्या है कि जब आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट स्टेप्स इन टू हेल्प द बॉडी यूज इट्स एनर्जी मोर कॉशियसली. सो आपका बॉडी इट विल ट्राई टू कोप विद द स्ट्रेसर एक्टिवली थ्रू एफर्ट, एडजस्टमेंट, कॉन्फ्रंटेशन, whatever works, and the stress symptoms they might reduce for a while, but the body is still working very hard internally to manage the pressure. And then comes your final, the third stage of gas, that is your exhaustion stage. तो जब स्ट्रेस कंटिन्यूस फॉर फार टू लॉन्ग और बॉडी के सारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो चुके हैं, देन कम्स योर एग्जॉस्शन स्टेज कि जो सिस्टम्स जिन्होंने हेल्प करा था इन द अलार्म एंड रेजिस्टेंस स्टेज, दे ऑल स्टार्ट टू फेल एंड द पर्सन बिकम्स वेरी फिजिकली एंड मेंटली ड्रेन्ड एंड दिस स्टेज मेक्स somebody vulnerable to illness like high blood pressure, chronic fatigue, stress related with disorders. We'll discuss a very important and थोड़ा सा difficult to understand subtopic in this chapter, but I'll try कि बहुत easily explain करूँ, that is stress and the immune system. So here we'll talk about psychoneuroimmunology, जो हमारी ब्रांच है साइंस की, that studies the link between mind and immune system. So ये दिखा रहा है कि कैसे आपके थॉट्स, इमोशंस, स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करते हैं. सो इसमें यू हैव योर ल्यूकोसाइट्स. नाउ ल्यूकोसाइट्स आर नथिंग बट योर वाइट ब्लड सेल्स, WBCs, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट इन्फेक्शंस. इसमें आपके पास है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आपके आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स जो फैगोसाइकोटिक, मतलब जो ईट और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो भी इन्वेडिंग बैक्टीरिया या फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है, और है ओसाइनोफिल्स. ओसाइनोफिल्स क्या कर रहे हैं? इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं और डील कर रहे हैं एलर्जिक रिएक्शन से. एंड तीसरे आते हैं बेसोफिल्स. बेसोफिल्स हिस्टामिन और हेपरिन रिलीज करते हैं एंड दे प्ले अ रोल इन इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज. फिर आते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट, जिसमें आते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स जो फैगोसाइकोटिक होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स, दे हेल्प क्लीन अप डेड सेल्स एंड जर्म्स. एंड लिम्फोसाइट्स में आते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स, जो अराउंड 20-25% ऑफ WBCs बनाते हैं. बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं जो फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शंस, एंड टी सेल्स अटैक करते हैं इन्फेक्टेड या कैंसरस सेल्स को, एंड टुगेदर दे आर कीप लेयर्स इन द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स. मूविंग ऑन टू स्ट्रेस एंड साइटोटॉक्सिसिटी. तो स्ट्रेस क्या करता है? इट कैन रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ आर नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स कहते हैं इन्हें, विच आर अ की पार्ट ऑफ आर इम्यून सिस्टम. तो जो NK सेल्स होते हैं ना, दे प्ले अ मेजर रोल इन डिफेंडिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड कैंसर. नाउ साइटोटॉक्सिसिटी क्या होता है? एज आई मेंशन, साइटोटॉक्सिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस लाइक हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स या फिर कीमोथेरेपी ड्रग्स टू बी टॉक्सिक टू लिविंग सेल्स. तो जब स्ट्रेस जो है वो NK सेल की साइटोटॉक्सिसिटी कम कर देता है, तो बॉडी बिकम्स मोर वल्नरेबल टू इलनेस. Now let's discuss coping with stress, that is techniques given by Endler and Parker. So you have your task oriented strategy, emotion oriented strategy and avoidance oriented strategy. टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज कि आप डील कर रहे हो प्रॉब्लम से लॉजिकली एंड एक्टिवली, मतलब आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, एंड देन यू आर टेकिंग स्टेप्स टू सॉल्व द इशू. इसमें एग्जाम्पल क्या है कि यू आर मेकिंग अ स्केड्यूल टू मैनेज द टाइम बेटर, यू थिंकिंग अबाउट कि कैसे सिमिलर प्रॉब्लम्स आपने पास्ट में सॉल्व करी थी. Emotion oriented strategy is you are managing emotions during the stress, मतलब you're trying to stay hopeful, you're controlling your emotions like fear or sadness, and you're venting out feelings of anger or frustration like talking to a friend or crying. And third is your avoidance oriented strategy. यहाँ पे you're trying to avoid or deny the stressful situation, like you're minimizing the seriousness of the issue in your mind, you're suppressing all your stressful thoughts, yeah, you're replacing them with self proactive like positive thoughts to feel better temporarily. Now we'll discuss coping with stress by Lazarus and Folkman. So इसमें you have your problem focused coping and emotion focused coping. Problem focused coping is the same जैसे हम task oriented वाली थी कि तुम डील कर रहे हो with the problem directly, solve कर रहे हो उसे, मतलब gather कर रहे हो information और change कर रहे हो situation को जिससे stress हो रहा है,
और अपने भी बिलीव्स कमिटमेंट्स वगैरह सब चेंज कर रहे हो ताकि प्रॉब्लम को ढंग से हैंडल कर पाओ. सो इससे कैसे हेल्प हो रहा है कि तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ रही है, तुम्हें नॉलेज बढ़ रही है, एंड यू हैव मोर ऑप्शंस फॉर एक्शन बोथ मेंटली एंड बिहेवियरली. एंड दूसरा है इमोशन फोकस्ड कोपिंग, जहाँ पे तुम मैनेज कर रहे हो इमोशनल डिस्ट्रेस को rather देन चेंजिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम. सो इसमें यू आर यूजिंग टेक्निक्स टू रिड्यूस द एंग्जाइटी या सैडनेस या एंगर, या यू आर डूइंग साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स टू फील मोर स्टेबल, मोर काम. बेसिकली आपका फोकस यहाँ पे इमोशनल रिलीफ पे है, नॉट ऑन सॉल्विंग द एक्सटर्नल कॉज ऑफ स्ट्रेस. नाउ विल डिस्कस सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. तो जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स एंड मेंटेन बैलेंस इन द बॉडी. सबसे पहले you have your relaxation techniques, deep breathing, progressive muscle relaxation etc. to calm the body and mind. दूसरा you have meditation, you are practicing focusing your attention and mindfulness to gain inner peace and reduce your stress. थर्ड इज बायोफीडबैक. बायोफीडबैक क्या है कि आप डिवाइसेज यूज़ करके यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ योर बॉडी फंक्शन. लाइक वो लगाते हैं ना लोग, सेंसर्स वगैरह लगाते हैं टू सी आपका हार्ट रेट कितना है, वो सब कितना है, एंड देन यू कंट्रोल देम कॉन्शियसली. Then is your creative visualization. You imagine peaceful, positive images to shift your mind away from the stressor and move it more towards the calm area. Then you have CBT, cognitive behavioral techniques, like you identify कि क्या negative thought pattern, then you change it with a positive, more rational thinking pattern. Then you have exercise की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस हार्मोन, इट बूस्ट द मूड, है ना, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. So activities like walking, yoga, sports, these are also beneficial. Okay, let's discuss our next topic, promoting positive health and well-being. तो सबसे पहले you have stress resistant personality. कुछ लोग genuinely जब हाई स्ट्रेस फेस करते हैं उनको स्टिल लो लेवल आती है ऑफ इलनेस, बिकॉज उनकी एक हार्डी पर्सनैलिटी है दैट इज मेड अप ऑफ 3 की ट्रेड्स. पहली बात, मतलब यू कैन रिमेंबर इट एज द 3 C's: कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज. कमिटमेंट क्या है कि दे स्टे इन्वॉल्व एंड एंगेज इन लाइफ एक्टिविटीज. दूसरा कंट्रोल, कि उन्हें बिलीव है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफ के इवेंट्स. एंड थर्ड इज चैलेंज, कि वो इवन डिफिकल्ट जो चैलेंज है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसे भी देख रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, नॉट थ्रेट. दूसरी कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग इज लाइफ स्किल्स. तो लाइफ स्किल्स क्या हो गई, काइंड ऑफ योर अडेप्टिव पॉजिटिव बिहेवियर दैट इज हेल्पिंग यू टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ डेली लाइफ. तो लाइफ स्किल्स में आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कोपिंग विद इमोशंस. थर्ड, असर्टिवनेस. असर्टिवनेस क्या है, एक आपकी एबिलिटी है कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने थॉट्स, नीड्स, फीलिंग्स क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली एंड रिस्पेक्टफुली. असर्टिव लोग जो होते हैं दे स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स विदाउट बीइंग अग्रेसिव, विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू अदर्स. फोर्थ, टाइम मैनेजमेंट, कि यू लर्न हाउ टू प्लान योर टाइम वेल एंड हाउ टू डेलीगेट टास्क ताकि आप पे प्रेशर ना पड़े. अगर गुड टाइम मैनेजमेंट होगा तभी आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज कर पाओगे एंड लास्ट में स्ट्रेस नहीं होगा एंड योर एफिशिएंसी विल बी इम्प्रूव्ड. फिफ्थ इज रैशनल थिंकिंग. इसमें क्या है कि यू चैलेंज योर इरेशनल थॉट्स, यू रिप्लेस योर नेगेटिव एंग्जाइटी प्रोवोकिंग बिलीव्स विद रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड यू. इससे क्या होता है कि अननेसेसरी जो भी स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है एंड मेंटल क्लैरिटी रहती है. एंड सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स. अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे तो उससे आपका मेंटल वेलबींग भी अच्छा रहेगा. सो और अच्छी रिलेशनशिप कैसे होगी, इफ़ यू हैव एक्टिव लिसनिंग, आप अपनी भी फीलिंग्स और थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हो और दूसरे का भी ओपिनियन और इमोशंस आप रिस्पेक्ट कर रहे हो. लास्टली सम अदर स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस इज सेल्फ केयर. सेल्फ केयर क्या है कि आप अपने खुद के फिजिकल इमोशनल वेलबींग का ध्यान रख रहे हो, बिकॉज व्हेन यू आर हेल्दी, फिट, रिलैक्स, देन आप बेटर हैंडल कर पाओगे स्ट्रेस. सो इसमें इट इज़ लाइक यू ईट वेल, you sleep well, you make time for rest and hobbies. Then is second is overcoming unhelpful habits. You let go of the habits that increase stress, like perfectionism कि सब कुछ flawless होना चाहिए, procrastination that you're delaying important tasks, या avoidance कि you're running away from your responsibilities or problems. So if you change these habits, then it also helps in reducing pressure and improving focus. And last is exercise कि regular अगर physical activity होगी, then your body will also stay fit, it will release stress hormones and it will improve your mood and overall mental health. With that, we have come towards the end of this chapter. If you have any doubts, make sure you comment them down below. Thank you so much for watching and see you next time.